तो आइए आज हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की यूनिट 4th नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टॉपिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव से डिफाइन पीआईडी और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ इन स्लाइड नंबर 7, anatomy of female reproductive organs in slide number 10, list out the risk factors of PID in slide number 12, list out the causes of PID in slide number 14, pathophysiology of PID in slide number 17, explain the clinical manifestation of PID in slide number 19. Next, list out the investigation of PID in slide number 22, medical management of PID in slide number 28, surgical management of PID in slide number 32. Next condition will be endometriosis. So definition in slide number 40, causes of endometriosis in slide number 43, sites of endometriosis in slide number 45, explain the clinical manifestation of endometriosis in slide number 47, medical management of endometriosis in slide number 51, and surgical management of endometriosis in 53 slide. Now definition of pelvic inflammatory disease. So it is an inflammatory condition of the pelvic cavity that may involve the uterus, fallopian tubes, ovaries, pelvic peritoneum or pelvic vascular system. Infection which may be acute, subacute, recurrent or chronic and localized or widespread. It is usually caused by bacteria, virus, fungus or parasite. So PID is nothing but infection or inflammation of upper genital tract. Mainly it includes fallopian tube, uterus and ovaries. But vagina and cervix are not involving in PID. PID is more common in sexually active female. Those age is less than 25 years. This PID can involve lots of complication, or it can include lots of complication like infertility. This infection may be for short time, for long time or repetitive infection, and it can be widespread. This is developed due to bacterial infection, viral or fungus and parasitic infection. See, this is the image of one pelvic inflammatory disease tract, reproductive tract. You can see here the ovary already start inflammation, it's already inflamed. Fallopian tube also inflamed and यूटरस ऑल्सो इन्फ्लेम्ड इन दिस केस. सो अगर हम देखेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो आपको ऐसा नज़र आएंगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में. नाउ एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सी, anatomy you know about female reproductive system, but here I'll review some portions of anatomy so that you can get clear idea about the condition, disease condition. So our female reproductive system is includes internal and external organs which help us in reproduction. Basically here I'll focus in internal portion of reproductive system. The internal reproductive organ includes 2 ovaries, 2 fallopian tubes, uterus, cervix and vagina. So ovaries are oval shaped and it is 4 centimeter long, and these ovaries are attaching with uterus with ligament. Now what is the function of the ovaries? Ovaries produce eggs or oocyte for fertilization, and they produce certain reproductive hormones like estrogen and progesterone. This is the first structure. Next is fallopian tube. This fallopian tube is muscular tube which connect ovary with uterus. The parts of fallopian tube includes, you can see the right side of pictures. There are total 4 parts of fallopian tube. First is isthmus, second one is ampulla, fourth one is infundibulum, next one is femori. So isthmus is just attaching with the uterus, ampulla just after the isthmus. But you remember, this ampulla is the largest portion in the fallopian tube, and ampulla is the area where fertilization can take place. After ampulla, infundibulum is present, and just below the infundibulum, femori is persist, and these femori help the ovum
to this family engulf the ovum, and in ampulla fertilization takes place. So in fallopian tube there are some hair cell present जिसको हम बोलते हैं cilia. These cilia help to move the fertilized egg in the uterus. So fertilized egg को move करने के लिए cilia मदद करते हैं. अगर कोई भी रीज़न से ड्यू टू एनी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से cilia डैमेज हो जाते हैं तो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे. Now we'll see the anatomical structure of uterus. Uterus एक strong muscular structure होते हैं which is 6 to 8 centimeter long and its wall is 2 to 3 centimeter thick. Uterus is divided in fundus, body and isthmus. This is the area body where fetus can grow और जिसमें fetus का growth होते हैं इस एरिया को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द यूटेरस. द नेक ऑफ द यूटेरस कॉल सर्विक्स एंड सर्विक्स वेजाइना के साथ इंक्लूड होता है. सर्विक्स प्रोट्रूड इनटू द वेजाइना एंड द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज द एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन. सो दैट्स ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. नाउ रिस्क फैक्टर्स. फर्स्ट इज अर्ली एज एट फर्स्ट इंटरकोर्स. सेकेंड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स. Next, frequent intercourse. Next, sex with a partner with STD. Next, history of sexually transmitted disease and previous pelvic infection. So first risk factor is early age at first intercourse. What is happening here? In early age our reproductive system is not at all matured enough, so if anyone do intercourse in early age there may be chance of getting trauma or injury in the reproductive tract. So by this trauma or injury the microorganism can easily invade the surrounding structure of our reproductive tract. नेक्स्ट इज मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर. मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं तो इसलिए रिस्क फैक्टर है. फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स. नेक्स्ट सेक्स विद ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शियस पर्सन एंड अदर पेल्विक इन्फेक्शन. नाउ कॉज. PID usually caused by bacterial infection. Example gonorrhea, chlamydia, trachomatis, staphylococcus, streptococcus and mycoplasma. So most common bacterial infection which develop PID, this is chlamydia, Neisseria gonorrhoeae and mycoplasma. Other organisms also they are like staphylococcus, streptococcus, E. coli, Klebsiella, anaerobes. These are the bacterial infection. अगर हम वायरल इन्फेक्शन का बात करें तो आपको याद रखना है साइटोमेगालोवायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर PID. नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज प्रिज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म यूजुअली एंटर द बॉडी थ्रू द वेजाइना एंड मूव अपवर्ड थ्रू द सर्वाइकल कैनल, कॉलोनाइज द एंडोसर्विक्स एंड मोर अपवर्ड इनटू यूटेरस. इसके मतलब है द मोस्ट common causative routes of PID is ascending infection along with sperm. जो ascending infection अगर होते हैं तो this is the most common route. ascending infection मतलब vagina होके cervix होके uterus, fallopian tube and ovary. So mainly ascending infection देखा जाते हैं child birth के बाद, normal child birth, after abortion, after any surgical procedures like hysteroscopy, endometrial biopsy, IUD इंसर्शन. इसी सर्जिकल प्रोसेस से या डिफरेंट प्रोसीजर से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकते हैं यूटेरस में, फैलोपियन ट्यूब में एंड ओवरीज में. नाउ पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी में देखो एंट्री ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म थ्रू द सिस्टेमिक स्प्रेड, लोकल इन्वेशन एंड डायरेक्ट स्प्रेड. सो इफ द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म is direct enter through the vagina then it affect endocervix. Infection and inflammation progress occur entry of positive organism into the uterus, fallopian tube and the ovaries. Next, if infection is not treated then pelvic abscess may develop. So organism different route से अफेक्ट कर सकते हैं. कैसे कैसे रूट्स होता है, जैसे कि असेंडिंग स्प्रेड हो सकते हैं, डायरेक्ट हो सकते हैं, या अगर कोई अदर पार्ट में इन्फेक्शन हुआ है तो इसी अदर पार्ट इन्फेक्शन से हेमाटोजेनस स्प्रेड से बैक्टीरिया हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद अगर ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट एंटर हो रहा है तो वेजाइना से सर्विक्स तक जाएंगे एंड इसी एरिया में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन होगा
एंड बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज में। अगर इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएंगे तो पेल्विक एब्सेस हो सकते हैं। यू कैन ऑल्सो से दैट ट्यूब ओवरियन एब्सेस केस। साथ में इनफर्टिलिटी भी पेशेंट में होते हैं। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे, हैवी वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल्स हो सकते हैं इसमें। और पीआईडी में मेनली लोअर एब्डोमिनल पेन कॉमन सिम्टम होते हैं, टेंडरनेस होते हैं लोअर एब्डोमिनल पेन में, एब्डोमिनल एरिया में। एंड जब भी आप टच करोगे तो पेन धीरे धीरे डिफिकेशन के टाइम में पेन बढ़ते हैं, वॉइडिंग के टाइम में पेन बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्केजिया बोलते हैं। एंड यूरिनेशन में पेन होते हैं जिसको हम डाइसूरिया बोलते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन होते हैं जिसको हम डिस्पेरोनिया बोलते हैं। और काफ़ी अदर मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं जैसे कि फीवर, मैलेज, एनोरेक्सिया, खाना खाने का कोई इच्छा नहीं होता है, वॉमिटिंग होते हैं, नोजिया होते हैं, हेडेक होते हैं पेशेंट में। Now based on the previous slide, I prepare one practice question. Let's see the question. First is, what are the symptoms of pelvic inflammatory disease? The option includes abdominal pain, foul smelling vaginal discharge, painful sexual intercourse, all of the above. The answer will be all of the above, क्योंकि आपने already symptoms में देखा है कि each and every option is present there. तो reference आपको मिलेंगे slide number 20 में. Now diagnosis. First diagnosis is history collection. In history collection, doctor will specifically ask about sexual habits, history of sexually transmitted infection, and methods of birth control. This is come under the history collection. Next, high vaginal and endocervical swab. So high vaginal swab is specially for identifying any persistence of Trichomonas vaginalis infection, candida or bacterial vaginosis. And endocervical swab specially for gonorrhea and chlamydia. Now mystery specimen for urine. Mystery specimen for urine should be sent for culture and microscopy. Next, pelvic examination. Pelvic examination is important to check the pelvic region for tenderness and swelling. Doctor sometimes may use cotton swab to take fluid from the vagina and cervix. This sample will be tested in the laboratory for chlamydia and gonorrhea infection. Next is blood culture. Next, full blood count and C-reactive protein, जिसमें C-reactive protein का level high मिलेंगे because this is the inflammatory case. Now serological test. Serological test in this PID case is very essential for identifying the presence of syphilis. Next, USG help the doctors to observe the reproductive structures. Is there any presence of abscess, ovarian abscess, tubular abscess or inflammation in the area? Next, laparoscopy. Laparoscopy is the gold standard diagnostic test in PID cases. This laparoscopy help to aspirate fluid or pus from microbiological study from the fallopian tube. And this laparoscopic study also help the surgeon to doctors identify any edematous condition, any erythematous condition, any presence of purulent exudate, tubes are mobile or not. By this laparoscopic diagnostic test they can observe this, or any inflammatory reaction is present or not. Next, endometrial biopsy. Endometrial biopsy is nothing but it is a small medical procedures in which a small piece of tissue from the lining of the uterus, और जिसको हम बोलते हैं endometrial tissue, is removed and examination under a microscope done. तो इसी एग्जामिनेशन से क्या पता चलता है कि कैंसर सेल परसिस्ट है या कोई ग्रोथ हुआ है या कोई ब्लीडिंग हो रहा है. नाउ डायग्नोसिस में हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डिपार्टमेंट की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग. देयर आर टोटल 3 criteria. First one is minimum criteria of PID, second one is additional criteria for PID, थर्ड वन इज़ डेफिनेटिव क्राइटेरिया. तो मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ PID को
ट्रायड ऑफ पीआईडी भी बोला जाता है। इसमें 3 मेन सिम्टम एराइज होते हैं। तीनों सिम्टम इज बेस्ड ऑन द टेंडरनेस और पेन, सेंसेशन ऑफ द पेन। अपर एब्डोमिनल टेंडरनेस, इसमें पेशेंट को अपर एब्डोमिनल एरिया में टेंडरनेस फील होगा और पेन फील होते हैं। एडनेक्सल टेंडरनेस, एडनेक्सल एक पर्टिकुलर एरिया होते हैं। दिस इज द रीजन एडजॉइनिंग द यूटरस दैट कंटेन द ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब एज वेल एज द एसोसिएटेड वेसल्स, लिगामेंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। जो भी यूटरस के एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसी रीजन को हम बोलते हैं एडनेक्सल एरिया। तो एडनेक्सल टेंडरनेस भी फील होते हैं, स्लाइट पेन और टेंडर फीलिंग इन द pelvic region like in uterus, ovaries and fallopian tube. Adnexal tenderness may be persist for a long period of time because इसमें cyst की डेवलपमेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, एसेस फॉर सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस बाय जेंटली मूविंग द सर्विक्स बैक टू फ्रंट पोजीशन। अगर इसमें मूवमेंट हो रहा है तो सर्विक्स लिटिल बिट ओके, अगर नहीं हो रहा है मूवमेंट के टाइम में पेन हो रहा है, तो दिस क्राइटेरिया में शो दैट पीआईडी केस। नेक्स्ट एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ पीआईडी, ओरल टेम्परेचर ग्रेटर देन 38.8 डिग्री सेल्सियस, 38.8 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा होंगे। सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो लीवर से एक्चुअली प्रोटीन का सीक्रेट होता है जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होते हैं, इसके लेवल नॉर्मली 10 mg/L से कम होना चाहिए, बट जब भी इन्फ्लेमेशन होते हैं ब्लड में उसकी लेवल बढ़ जाते हैं। तो उसकी लेवल कितना बढ़ते हैं, 10 mg/L से बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ESR इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें हम देखते हैं कितना फर्स्टली एरिथ्रोसाइट जो है डिपॉजिट हो सकते हैं टेस्ट ट्यूब में, बट इन द केस ऑफ इन्फ्लेमेशन इसकी जो रेट होते हैं उसका वैल्यू 15 mm और HR से बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया में हमें मिलेंगे वेजाइनल और सर्वाइकल म्यूकोपोरुलेंट डिस्चार्ज। इसमें डिस्चार्ज आएगा वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होंगे जिसमें म्यूकस परसिस्ट होगा, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकता है इस डिस्चार्ज में। नेक्स्ट WBC मिलेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज में, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में और सेलाइन अमाउंट में। अगर लैब डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाएगा और सर्वाइकल इन्फेक्शन की, तो इसमें मेन कॉमन बैक्टीरिया जो होता है क्लैमाइडिया एंड गोनोरिया, तो परसिस्ट मिलेंगे। नेक्स्ट CDC का लास्ट क्राइटेरिया होता है डेफिनेटिव क्राइटेरिया ऑफ द पीआईडी। इसमें क्या क्या है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एविडेंस में आपको मिलेंगे एंडोमेट्रियोसिस और एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी करोगे आप सब एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। एंडोमेट्रियोसिस मीन्स ग्रोइंग ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू जस्ट आउटसाइड ऑफ द एंडोमेट्रियम, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पीआईडी। और क्या मिल सकता है डेफिनेटिव क्राइटेरिया में, ट्यूबो ओवरियन एब्सेस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी में एब्सेस फॉर्मेशन होगा। अगर पीआईडी की कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो एज ए कॉम्प्लिकेशन देयर विल बी ट्यूब ओवरियन एब्सेस एंड विल फाउंड इन सोनोग्राफी। लेपारोस्कोपिक एबनॉर्मलिटी आपको मिलेंगे। लेपारोस्कोपिक एबनॉर्मलिटी में एबनॉर्मल ब्लीडिंग, डिस्पेरोनिया, वेजाइनल डिस्चार्ज। बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्लाइड I prepared one another practice question. Let's see this question. How is pelvic inflammatory disease diagnosed? The option includes pelvic exam, MRI, endoscopy, X-ray. So main investigation will be pelvic examination. Now medical management. मेडिकल मैनेजमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, रेजिमेन A, रेजिमेन B एंड ऑल्टरनेटिव रेजिमेन। तो रेजिमेन A में मेन फोकस रखते हैं सेफोटेटिन, सेफोक्सिटिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन के ऊपर। यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कीप इन माइंड द डोजेज ऑफ दोज ड्रग्स। नेक्स्ट रेजिमेन B, क्लिंडामाइसिन, जेंटामाइसिन। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव रेजिमेन, अगर रेजिमेन A एंड रेजिमेन B is not effective, then ampicillin and doxycycline can provide to the patient. Now surgical management. First foremost surgery is oophorectomy. What is oophorectomy? This is nothing but removal of the ovary. दोनों ओवरी को रिमूव कर सकते हैं और इट में भी बायलैटरल एंड इट में भी यूनिलैटरल।
Oophorectomy is done in the case of ovarian abscess. So oophorectomy can be performed in two ways. First one is laparotomy surgery or open surgery, and second one is laparoscopic surgery. So laparotomy surgery में doctor what they are doing, surgeon make one long incision in the lower abdomen to access the ovaries, and the surgeon separate each ovary from the blood supply and tissues that surround it and remove the ovaries. This is the open surgery. अगर laparoscopic का बात करें, the surgeon make 3 or 4 very small incision in the abdomen. आप pictures में भी देख सकते हो, this is the laparoscopic surgery. इसमें 3 से 4 incision create किया गया है, and the surgeon insert a tube with a tiny camera through one incision. एक incision में आप देख सकते हो laparoscope को insert किया है, and this laparoscope क्या करते हैं, वीडियो मॉनिटर करके वो वीडियो को मॉनिटर में सेंड करते हैं ऑपरेटिंग रूम में, सो दैट सर्जन कैन गाइड द सर्जिकल टूल. उसके बाद और एक इंसिशन से सर्जिकल टूल को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं. उसके बाद ओवरी को सेपरेट किया जाता है ब्लड सप्लाई एंड सराउंडिंग टिश्यू से. देन दिस एक पाउच प्लेस किया जाते हैं, एंड इस पाउच को पुल करते हैं एब्डोमेन या दूसरा इंसिशन से, एंड इसको हम बोलते हैं लेपारोस्कोपिक सर्जरी. 3 इंसिशन होते हैं, एक में लेपारोस्कोप, एक में सर्जिकल टूल, और एक में जो पाउच लिंक्ड ओवरी है इसको रिमूव करके ले आते हैं. नाउ सल्पिंजेक्टोमी. सल्पिंजेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें फेलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाते हैं, बोथ और सिंगल फेलोपियन ट्यूब रिमूव होते हैं. इसमें भी ओपन सर्जरी किया जाते हैं या लेपारोस्कोपिक सर्जरी भी परफॉर्म करते हैं. Now nursing management. First of all, the nurse should educate the female regarding the changes in menstrual cycle and outcome of treatment. तो इस first and foremost thing of nurse in this case is educate the patient, give health education regarding the menstrual hygiene and menstruation के टाइम में क्या क्या changes हो सकते हैं. Dysmenorrhea होगा, painful menstruation हो सकते हैं, and कभी कभी एमेनोरिया हो सकते हैं, मेनोरेजिया हो सकते हैं, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग भी हो सकते हैं, हेवी ब्लीडिंग, पेशेंट में फील हेवी ब्लीडिंग. तो इस कंडीशन की वजह से इस सारे सिम्टम्स के बारे में पेशेंट्स को आपको पहले से एजुकेट करना है. नेक्स्ट, द नर्स शुड प्रोवाइड सेमी पोलर पोजिशन टू फैसिलिटेट द ड्रेनेज फैसिलिटेट करने के लिए सेमी पोलर पोजिशन देना चाहिए. देन नर्स should maintain accurate recording of vital signs and characteristics of vaginal discharge. vaginal discharge की जो characteristics है इसको नोट डाउन करना है एंड मॉनिटर करना है, साथ में vital signs भी चेक करना है. vaginal discharge कैसा हो सकता है, abnormal mucoid vaginal discharge हो सकते हैं. नेक्स्ट, नर्स शुड एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब मेडिसिन टू पेशेंट. पेशेंट के लिए प्रेस्क्राइब मेडिसिन एडमिनिस्टर करना है उन लोग को. नाउ प्रिवेंशन. Educate the patient to avoid reinfection and the potential hazards of it. Next, the patient should be warned against multiple sexual partner. Use precaution while coitus. Next, the patient are to be traced and properly investigated to find out the organisms and treated effectively. If they have got non-gonococcal urethritis, they should be treated with tetracycline 500 mg 6th hourly or doxycycline and 100 mg twice daily for 7 days. Advise the patient for repeat smear culture from the discharge are to be done after 7 days following the full course of treatment. First, educate the patient from getting any reinfection and how to prevent from risk factor. उसके साथ patient को आपको समझाना है they should avoid multiple sexual partners and use precautions while doing intercourse. पार्टनर्स जो है इनको भी ट्रेस किया जाएंगे टू इन्वेस्टिगेट द ऑर्गेनिज्म. अगर इनमें नॉन गोनोकोकल इन्फेक्शन परसिस्ट है तो इसको इन लोग को टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक प्रेफर किया जाते हैं. पेशेंट को 7 दिन बाद डिस्चार्ज के 7 दिन के बाद फिर से रिव्यू करने के लिए आपको एडवाइस करना है. सो दिस आर द preventive measure of pelvic inflammatory disease. Okay, that's all about PID. So what is PID? PID is nothing but infection and inflammation of the upper genital tract of female.
सो कौन सी जेनिटल ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है? पार्ट्स, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट? मेनली बैक्टीरियल पैथोजन लाइक क्लैमाइडिया, mycoplasma, staphylococcus, Neisseria gonorrhoeae, streptococcus. These are the main कॉमन ऑर्गेनिजम्स. वायरस में इन्फेक्शन होते हैं लाइक साइटोमेगालोवायरस. अगर कोई सर्जरी हो रहा है, आफ्टर सर्जरी, आफ्टर एबॉर्शन, इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्ट करने के बाद, तो दीज आर द कॉजेज ऑफ पीआईडी. तो पीआईडी में डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं. लोअर एब्डोमेन में पेन होते हैं, डिसमेनोरिया होते हैं, एनोरेक्सिया होते हैं, कभी कभी पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन, ड्यूरिंग यूरिनेशन. डायग्नोसिस, लेपारोस्कोपिक इज़ द गोल्डन स्टैंडर्ड डायग्नोसिस. इसको छोड़ के भी पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाते हैं, एक्सरे, एमआरआई, डिफरेंट डायग्नोसिस परफॉर्म करते हैं. मेडिकेशन में एंटीबायोटिक ड्रग्स प्रेफरेबल है, एनाल्जेसिक एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दिया जाते हैं. सर्जिकल मैनेजमेंट में पेशेंट को ओफरेक्टोमी किया जाते हैं, सल्फेंक्टेक्टोमी किया जाते हैं. एंड पेशेंट को एडवाइस करना है, प्लीज़ डू नॉट डू इंटरकोर्स फॉर सर्टेन पीरियड. अगर बाद में करना है तो इंटरकोर्स, तो इस टाइम में you can use the precautions, you can take or you can follow the precautions and should be warning in the multiple sexual partners. Now we'll talk about one another condition of female reproductive system only, that is endometriosis. Definition: endometriosis is a condition in which the endometrial tissues are present other than uterine mucosa. The uterine tissue may be found in the myometrium, then it is called endometriosis interna or adenomyosis. The endometrial tissue are found other side, then it is called endometriosis externa. So what is endometriosis? Endometriosis is the presence of endometrial gland or endometrial stroma just outside of the endometrial cavity and uterine musculature. Let's talk about the layers of the uterus. Uterus has 3 layers: perimetrium, myometrium and endometrium. बट इधर क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम के बाहर टिश्यू ग्रो होते हैं. अगर वो टिश्यू मायोमेट्रियम में मीन्स मिडिल सेक्शन ऑफ द लेयर में ग्रो हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस इंटरना और एडिनोमायोसिस. अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू आर फाउंड अदर साइड, देन इट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना. अभी आप इस पिक्चर्स को देखो. नॉर्मली जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं तो एंडोमेट्रियम का शेडिंग होते हैं. तो एंडोमेट्रियम शेडिंग होने के लिए एंडोमेट्रियल की जो टिश्यूज़ है उसको प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होते हैं. तो इसके प्रिपरेशन करने के लिए हमारे मायोमेट्रियम में एक आर्टरी होते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ द आर्टरी, जिसका यूटेराइन आर्टरी बोलते हैं. इस यूटेराइन आर्टरी का भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जिसको स्पाइरल आर्टरीज किया जाते हैं, वो बोला जाते हैं. दिस स्पाइरल आर्टरीज डायरेक्टली गो ऑल अप टू द एंडोमेट्रियम एंड हेल्प टू ग्रो इट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन के पहले एंडोमेट्रियम को ग्रो करते हैं. कैसे ग्रो कर सकता है? स्पाइरल आर्टरी सप्लाई द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एंडोमेट्रियम. तो नॉर्मली इस एंडोमेट्रियम लेयर शेड होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. तो अगर एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड ऑफ द यूटेरस ग्रो करना शुरू कर देंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे आउटसाइड ऑफ द यूटेरस में, तो हमारे हार्मोनल रिएक्शन की वजह से दिस एंडोमेट्रियल टिश्यू आल्सो स्टार्ट रिएक्टिंग एंड स्टार्ट ब्लीडिंग. तो ऐसा कंडीशन देखा जाता है एंडोमेट्रियोसिस में. मेनली 20 to 30 years of ladies are in the risk of getting endometriosis. आप देख सकते हो हमारे टोटल यूटेरस मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कोई एंडोमेट्रियल टिश्यू कवर कर रखा है. कहाँ कहाँ डिपॉजिट हो सकते हैं? ओवरीज में हो सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब में हो सकते हैं, मायोमेट्रियम में, पेरीमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम में, एनी अदर पेल्विक कैविटी में भी हो सकते हैं, ब्लैडर में भी हो सकते हैं, रेक्टम में भी हो सकते हैं, पाउच ऑफ डगलस में भी हो सकते हैं. एनीवेयर इट कैन डिपॉजिट एंडोमेट्रियल टिश्यू. ठीक है, तो नाउ हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन. विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ ऑफ यूटेराइन टिश्यू आउटसाइड द uterus? Endometriosis, PCOS, endometrial cancer, or ovarian cyst. As you know that endometriosis is the condition. Now causes: retrograde menstruation, transformation of peritoneal cell, embryonic cell
transformation, surgical scar implantation, and endometrial cell transport. Though there is not any exact cause of developing endometriosis, it is only based on the theories. First theory is retrograde menstruation. What is happening in menstruation? Endometrial cells start shedding, and it usually comes out from the cervix to the vagina and then outside of the body. But in the case of retrograde menstruation, due to any factors, this blood containing endometrial cell flow back through the fallopian tube and into the pelvic cavity instead of out of the body. बॉडी के बाहर नहीं जाएंगे, वो बैक फ्लो हो जाएंगे fallopian ट्यूब से pelvic cavity में डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसमें क्या एंडोमेट्रियल सेल भी रहेंगे. अगर इस एंडोमेट्रियल सेल ओवरी में डिपॉजिट हो जाते हैं, इसको हम चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं. एंड पेल्विक एरिया में जब इस सेल डिपॉजिट होंगे, वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे एंड इससे भी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरिटोनियल सेल. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरिटोनियल सेल इज एक्चुअली नोन एज इंडक्शन थ्योरी. इसमें एक्सपर्ट सेज दैट सम हार्मोन एंड इम्यून फैक्टर ट्रांसफॉर्म द पेरिटोनियल सेल इनटू द endometrial cell. So this endometrial cell start growing abnormally and bleeding occur. Now embryonic cell transformation, due to our hormonal factor like estrogen and progesterone, this embryonic cell in puberty time start transforming into endometrial cell और endometrial cell के develop होंगे. Next, surgical scar implantation. After a surgery such as hysterectomy or C-section, endometrial cell may attach to a surgical section. Actually what happening here, जब endometriosis होते हैं तो endometrial tissue different areas में deposit होते हैं, इससे bleeding होते हैं. In menstruation, cycling bleeding हो सकते हैं menstruation के टाइम में. इस टाइम heavy bleeding होते हैं, patient में बहुत irritation होते हैं, inflammation feel, patient is to feel inflammation and irritation. उसी inflammation and irritation से कभी कभी स्कार डेवलप हो जाते हैं, सर्जिकल स्कार का डेवलप कभी कभी स्कार टिश्यू डेवलप हो जाते हैं इन बिटवीन द ऑर्गन्स, एंड वो स्कार टिश्यू क्या करते हैं, दोनों ऑर्गन को एडिशन कर देते हैं. आप जैसे कि देख सकते हो ब्लैडर एंड रेक्टम एक साथ एडिशन हो सकता है ड्यू टू स्कार डेवलपमेंट. तो दिस इज लिटरली वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन. नेक्स्ट, एंडोमेट्रियल cell transport. The blood vessels or tissue fluid system may transport endometrial cell to other part of the body. Now बोलते हैं endometrial cell transport. Immune system disorders. A problem with the immune system may make the body unable to recognize and destroy endometrial like tissue that's growing outside the uterus. These are the causes of endometriosis. Now sites of endometriosis. Endometriosis की जो sites हैं, possible location आप देखो, fallopian tube, ovaries, bladder, uterus rectal space, pouch of Douglas, vagina. तो main site होते हैं pouch of Douglas most commonly. तो pouch of Douglas is the space in between the bladder and rectum. तो आप देख सकते हो endometrial tissue different area में deposit हो चुका है. अगर इसमें ब्लैडर में डिपॉजिट हो रहा है एंडोमेट्रियल टिश्यू, उस टाइम में पेशेंट को यूरिन पास करने के टाइम में बहुत ही पेन होते हैं, जिसको हम डाइसोरिया बोलते हैं. अगर रेक्टम में डिपॉजिट हो चुके हैं एंडोमेट्रियल टिश्यू, तो इसमें प्रॉब्लम इन डेफिकेशन, डिस्केजिया बोलते हैं, साथ में ब्लीडिंग भी हो सकते हैं. अगर इसमें पेशेंट को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और वेजाइना में एंडोमेट्रियल टिश्यू का एक्यूमुलेट हो रहा है, तो पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होंगे, इसको हम बोलेंगे डिस्पेरोनिया. नेक्स्ट, कभी कभी पेशेंट को डिसमेनोरिया भी होते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, यूटेरस में भी इकट्ठा हो सकते हैं. तो जिसी इन्फ्लेमेशन के वजह से डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, वो इरिटेट हो जाते हैं एंड जिसमें स्कार टिश्यू फॉर्मेशंस होते हैं, एंड धीरे धीरे वो स्कार टिश्यू क्या करते हैं, दोनों ऑर्गन को एक दूसरे के साथ एडिशन कर देते हैं. दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ PID, एडिशन. नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया कि डिसमेनोरिया, पेनफुल इंटरकोर्स, मेनोरेजिया, इनफर्टिलिटी इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. डिस्पेरोनिया, हेमेचोरिया, ब्लीडिंग,
during bleeding with urine, painful defecation, diarrhea, pelvic pain, dysuria, burning sensation while urination, rectal bleeding. Now diagnosis, history collection एंड हिस्ट्री मेनली कलेक्ट किया जाएगा कि ब्लीडिंग तो हो रहा है, ब्लीडिंग कौन से अमाउंट में हो रहा है, डिस्चार्ज अगर वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वेजाइनल डिस्चार्ज की, जो भी सिम्टम्स आपको मिले हैं इसी सिम्टम्स को आप अच्छे से एज ए हिस्ट्री कलेक्शन से आप सिम्टम को एसेस करोगे. फिजिकल एग्जामिनेशन में मेनली पेल्विक एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पेल्विक टेंडरनेस यू कैन गेट टू सी हेयर, हेड एंड एक्सल टेंडरनेस भी आपको मिलेंगे. स्पेकुलम एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन में आपको एंडोमेट्रियम टिश्यू परसिस्ट मिलेंगे. यूएसजी में आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रक्चर देख सकते हो. एंडोमेट्रियल बायोप्सी किया जाएगा. एमआरआई टू रूल आउट द ट्यूमर एंड लेपारोस्कोपी इज द गोल्डन डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एंडोमेट्रियोसिस. नाउ मेडिकल मैनेजमेंट, एंडोमेट्रियोसिस में मेडिकल मैनेजमेंट जो होते हैं दिस इज़ बेसिकली हार्मोनल कंट्रोल थेरापी. बिकॉज दिस हार्मोनल थेरापी हेल्प्स टू suppress the ovulation for certain period of time and साथ में it reduce the thickening of endometrium को grow होने नहीं देते हैं and it amenorrhea करते हैं for short duration. तो अगर एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं हो रहा है तो एंडोमेट्रियम टिश्यू आउटसाइड ऑफ द यूटेरस भी डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे. सो दिस इज़ द मैनेजमेंट. हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल क्यों यूज़ किया जाता है, इसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कंबाइंड पिल यूज़ करते हैं, जैसे कि डेनाजल यूज़ करते हैं. डेनाजल में 600 to 800 mg दिया जाते हैं एंड इट वर्क बाय डिक्रीज द अमाउंट ऑफ हार्मोन मेड बाय द ओवरीज. लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का अमाउंट को डिक्रीज कर देंगे एंड कंडीशन को स्टेबल बनाएंगे. नेक्स्ट GnRH analogs. This GnRH analogs is very suitable for shut down the ovaries for certain period and stop menstrual cycle. You can say it is a medical menopause menstrual cycle को certain period के लिए stop करने के लिए GnRH analogs is very essential. It comes with menopausal side effect. इसमें menopausal side effect भी देखा जाता है, जैसे कि hot flashes, night sweating, weight increase हो जाते हैं, thinning of the bone. Example includes Degrelix. नेक्स्ट अदर मेडिकेशन इंक्लूड्स NSAID. अगर पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पेन होते हैं तो इन केस में ब्रूफेन एंड नेप्रोक्सेन सोडियम प्रेस्क्राइब किया जाता है. नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट में कंजर्वेटिव सर्जरी एंड डेफिनेटिव सर्जरी किया जाते हैं. कंजर्वेटिव सर्जरी में mainly they focus to destroy the endometrium lesion by laparoscopy. कैसे लेपारोस्कोपी से आइडेंटिफाई करेंगे एंडोमेट्रियल टिश्यू को एंड इसको डिस्ट्रॉय करेंगे बाय हीट, बाय इलेक्ट्रिक करंट, बाय हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं डायथर्मी, और लेज़र की मदद से सॉफ्ट टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया जाते हैं. एंडोमेट्रियल टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, इसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव सर्जरी, डिस्ट्रॉय द एंडोमेट्रियल लीजन. नेक्स्ट इज डेफिनेटिव सर्जरी. अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू डिस्ट्रॉय करने के बाद भी सिम्टम्स परसिस्ट है तो डेफिनेटिव सर्जरी किया जाएंगे. डेफिनेटिव सर्जरी में हिस्टेरेक्टोमी एंड विद बायलैटरल सल्पिंजोफ्रेक्टोमी इज द चॉइस of surgery. Hysterectomy means removal of the uterus and bilateral salpingo-oophorectomy is the removal of both ovaries with fallopian tube and साथ में endometrial tissues को भी remove करते हैं. नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट में पेन होगा तो पेन के लिए पेन किलर और all the measures we can take to prevent the pain or to reduce the pain of the patient, like hot application, cold application, comfortable position to the patient, give psychological support to the patient, pain killer देना, anxiety को दूर करना and knowledge increase करना patient की. So that's all about the endometriosis. तो मुझे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. आज हमने BSc थर्ड ईयर के कंडीशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, 2 कंडीशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. तो
धन्यवाद।